All right, good morning, everyone. So let's pick up from where we started yesterday. कल जहां से हमने रोका था वहां से जारी करेंगे. So we stopped at chapter 4, stages of growth development. और हमने चौथे पार्ट में देखा था जहां पर बढ़ने का जो चरण है. Right, so we did a case study. We looked at the church of Jerusalem, and then we also looked at the church in Antioch. हमने यरूशलेम की कलीसिया और अंतियोक की कलीसिया के विषय में देखा था. So we saw the stages of growth. Stage 1 was pioneering stage. पहला चरण जो है नए रीति से स्थापना करने का एक चरण था. So yesterday we talked about how important the foundation is. और हमने कल देखा था कि कितना जरूरी है एक नींव डालना. So when you talk about the pioneering stage, it's a stage of just sowing seeds in your ministry. और जब एक नया रीति से आरंभ करने का मतलब ये है कि आप एक बीज बोने के समान. Right? And mostly 9 out of 10 churches are started with 2 or 3 people. और ज्यादा से ज्यादा कलीसिया जो है 2 या 3 व्यक्ति के साथ आरंभ किया And जाता this है. is called a church planting team. और इसे कहते हैं कलीसिया को स्थापना But करने का टीम. what you do in the foundation, और जो आप नींव में करते हैं that is what is going to last in your ministry. और वो चीजें हैं जो आपकी सेवकाई में रहेगा. Then we look at administration or organizational structure. और तब उसके बाद देखा था कलीसिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है राष्ट्रीय रीति से Now, उस विषय को so देखा. I'm going to take APC as an example. मैं एपीसी को एक उदाहरण के रूप में लेना चाहता Now, हूँ. different churches in different places may follow different styles of administration. और अलग अलग कलीसियाएं जो है अपने अलग अलग रीतियों इस्तेमाल करते हैं. So yesterday I said, as an organization, APC has the ministry, and then there is administration. और एपीसी के जगह पर जहां पर हम देखते हैं चर्च के हिसाब से वहां पर सेवकाई है और उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन टीम भी है. So when APC started, there were about 10-12 people. एपीसी जब शुरू किया गया था 10-12 ही लोग थे. So after some time, the ministry started to grow. और कुछ समय बाद जो है कलीसिया जो है बढ़ना शुरू हुआ. Right? And then we started getting people to join as staff. और उसके बाद जो है लोग जुड़ना शुरू हुए. Right? And then we also had pastors, associate pastors. उसके बाद हमारे पास पास्टर्स आए, एसोसिएट पास्टर्स आए. So the organization, the administration of the church is normally done when a church grows to at least 100 people. और एडमिनिस्ट्रेशन एक कलीसिया का एडमिनिस्ट्रेशन तभी किया जाता है जब 100 अंक में लोग बढ़ जाते हैं. Now, it doesn't mean if you have 50 people, you cannot have administration. You can do it. और उसका ये मतलब नहीं है कि 50 लोग अगर आपके कलीसिया में वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता. But we have to see whether it is required or no. तब हमें ये देखने की जरूरत है उसकी जरूरत है या नहीं है. Right? So 50 people, I think one person is enough to handle the church. और 50 लोग मतलब एक व्यक्ति काफी है कि वो कलीसिया को चला सके. But if the church comes to 500 people, you need a whole team of people serving the congregation. और जब 500 लोग बढ़ जाते हैं आपके कलीसिया में एक टीम की जरूरत पड़ता है विभिन्न कार्यों को अगुवाई देने के लिए. Now, as time goes on, there will also be new ministries birthed within an organization, within the church. और जब समय आगे बढ़ता जाता है नए जो क्षेत्र है वहां कलीसिया के अंदर उत्पन्न होगा. Always remember, revelation is progressive. We keep getting revelation. और हमेशा याद रखें जो प्रकाशन होता है वो बढ़ने वाला प्रकाशन होता है. So God may give you a vision to start the church. परमेश्वर आपको एक कलीसिया शुरू करने के लिए अगुवाई देगा. And you started the local church. आपने स्थानीय कलीसिया को But आरंभ as किया. years go by, और जैसे साल आगे बढ़ता है God opens doors where you get opportunities to start new ministries. और परमेश्वर आपको मौके देता है ताकि आप नए कलीसियाओं को आरंभ कर सको. Let me give you this example. एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ.
early in the years, I think 2005, 2006, पहले 2006 और 2005 के समय में there's a person here in Bangalore who has a chain of schools. और यहाँ पर एक व्यक्ति था बैंगलोर में है जिसके पास अलग अलग स्कूल्स हैं जो एक चेन ऑफ स्कूल्स कहते हैं, Right? Regular schools. वहां पर साधारण जो हर दिन की स्कूल होता है वो स्कूल, But she was a believer. वो एक विश्वासी थी. So she wanted in some way that, we can teach the children about the scriptures. Maybe Or- 1 hour in a week. और उनका इच्छा था कि किसी भी तरीके से 1 घंटा जो है बच्चों को परमेश्वर के वचन में से शिक्षा दे. So they came and asked us. उन लोगों ने हमसे आके पूछा. So we said, okay. हमने कहा ठीक है. Now, we never planned this. और कभी भी हमने ये योजना बनाया नहीं था. But a door was open for us to go into schools. और उस स्कूल में प्रवेश करने के लिए हमारे सामने एक द्वार खुल के मिला. And so every week we used to go and teach the children. और हर हफ्ते हम लोग जाते थे, बच्चों को शिक्षित करते थे. And this ministry is called the Catalyst Ministry. और इस मिनिस्ट्री को कैटलिस्ट मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है. So Pastor Selina is coming in the afternoon session. She heads up this Catalyst Ministry. और पास्टर सेलिना दोपहर को जो आती है वो इसके नेतृत्व करती है. Now, we didn't think of it when APC started. हम एपीसी जब आरंभ किया था हमने इसके बारे में नहीं सोचा था, But over time it came up. लेकिन समय के चलते ये आरंभ किया गया. So be open to what the Lord is doing in your ministries. और आपके सेवकाई में जो कुछ परमेश्वर कर रहा है उसके लिए खुले मन के साथ रहें. Then we get into this pastoral stage or the senior pastor stage. और तब उसके बाद हम पासबानों की एक चरण या विशिष्ट पासबान की या श्रेष्ठ या बड़े पासबान की श्रेणी में क्षेत्र में आते हैं. So now initially you have one pastor in charge. और सामान्य रीति से एक पासबान होता है जो नेतृत्व करता है. And slowly the church grows and he has associate pastors. और धीरे करके कलीसिया बढ़ता है और उसके पास एसोसिएट पास्टर्स होते हैं. Associate or assistant pastors. एसोसिएट या सहायक पास्टर. Right? Now, what will happen is this pastor will go into another role called the senior pastor. और ये जो है बड़े जो पास्टर हैं जिन्हें कलीसिया को आरंभ किया वो एक चरण में पहुंच जाते हैं जहां पे वो बड़े पास्टर बन And this जाते will हैं. become the pastoral team. और ये जो है एक पासबानों का एक टीम बन जाता है. Now, if you have 100 people in a church, अगर आपके पास 100 लोग हैं कलीसिया के अंदर, do you need 5 pastors? क्या आपको 5 पासबानों की जरूरत है? Do you need 3 pastors? क्या आप लोगों को 3 पासबानों की जरूरत है? 2 pastors? 2 पास्टर? I think 2 pastors is good. मैं सोचता हूँ 2 पास्टर लोग अच्छे हैं. Because one pastor can look after the ministry of the church. एक पासबान जो है कलीसिया के कार्यों को देख सकता है. And another pastor can look after member care and cell groups, life groups, all that is happening. और दूसरा पासबान जो है वहां के सदस्यों को और कोशिका प्रार्थना मंडलियों को देख सकता है. Right? Now, I'm not saying that if it's 100, there should be 2 pastors. If there are 100 people in a church, you can also have 3 pastors. और मैं ऐसा नहीं कहता कि 100 लोग हैं तो 2 पास्टर ही होना, 3 पासबान भी हो सकते हैं. So, but then we must think, is it okay to do this? Is it applicable to do it now? और हमें ये सोचने की जरूरत है कि अभी इसको करने के लिए ठीक है कि नहीं, उसको प्रयोग में ला सकते हैं कि नहीं. And after this stage, इस चरण के बाद now it's mostly, you've spent about 8 to 10 years in the ministry. और 8 से 10 साल जो आप सेवकाई में गुजार चुके The हैं. next stage is the equipping or the building stage. और अगला चरण जो आता है वो है तैयार करने वाला चरण. Right? So as a church, you're not just going on Sunday preaching, helping the people. It's not only that. और आप कलीसिया में रविवार को जाते हैं सिर्फ प्रचार करना या लोगों को सहायता करना तक नहीं है. There's an equipping happening. वहां पर तैयार करने की एक We're प्रणाली हो रही है. training up people to take up leadership.
और वहां पे प्रशिक्षित किया जा रहा है कि लोग अगुवाई का काम ले We're सके training up people to move in signs, wonders, and miracles. और चिन्ह और चमत्कार की ओर चलने के लिए हम उनको प्रशिक्षित करते हैं। We're training up youngsters, men and women of God to minister to every sphere of influence. और हर एक क्षेत्र के लिए उपयोग में लाने लायक जवानों को हम प्रशिक्षित करते हैं। So it's a building stage, it's an equipping stage. वो एक बनाने का एक चरण है और एक प्रशिक्षण करने का एक चरण है। So we don't want to see believers just, coming on Sunday and going back. और हम ये नहीं देखते कि विश्वासी कलीसिया के सदस्य आते हैं रविवार को और चले जाए Or attend one cell group and go back home. और एक कोशिका मंडली को में हो जाए और चले जाए। We want to see people growing and equipping in a way that they will be able to minister to others. और हम देखना चाहते हैं कि लोग जो है तैयार हों और प्रशिक्षित हों ताकि वो लोग बढ़े। Right? So now the focus, अब जो हमारा ध्यान है, for example, the first 8 to 10 years, उदाहरण से 8 से 10 साल के जो कलीसिया का it था, is, you're focusing on the church congregation. और कलीसिया का जो मंडली है उसके ऊपर ध्यान था हमारा। But now after 10 years, for example, 10 साल के बाद you're focusing on raising up building stage. और अब आपका ध्यान है कि आप बनाने की चरण में आए। Who can go out and minister? और कौन कौन जो है बाहर जाकर सेवकाई कर सकते हैं। And maybe after 10 years, और 10 साल के उपरांत, or maybe after 15 years, और 15 साल के या फिर 15 साल के बाद we go into the apostolic stage. हम जो है अपुस्तुलिक प्रेरितों के चरण में जाते हैं। So we have this mindset. Now the focus is no more only in the church, हमारा ध्यान जो है सिर्फ जो है कलीसिया के अंदर नहीं है, but the focus is also to reach out to the city, to the nations and the nations. और शहरों में, देशों में और देशों में जाने का लक्ष्य बन जाता है। Right? But we should also be careful that we don't neglect the church. लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि जो कलीसिया है उसको भूल न जाए। Right? So we must have a balanced focus on what ministry we are doing. हमें एक संतुलित रीति से करना है कि क्या सेवकाई कर रहे हैं। So even as we, sometimes we go out on missions to different places. और जब अलग-अलग जगह पर मिशन काम के लिए जाते हैं, So it's not like we go out and we forget everything that's happening in Bangalore. और हम लोग ऐसा नहीं है कि वहां पर जाते हैं और बंगलोर में क्या क्या हो रहा है वो भूल जाते हैं। We always see this is important. Bangalore, the church in Bangalore is important. और बेंगलोर में जो चर्च है वो महत्वपूर्ण है, Right? But we don't want to stay there. We want to reach out. लेकिन हम वहां पर ही सीमित नहीं रहना चाहते, हम और फैलना चाहते हैं। We want to gain new territory. हमें जो है नए स्थानों को प्राप्त करना जरूरी है। Now the senior pastor and the pastoral team is not putting all their focus in the ministries in the church because there are already leaders assigned. और अभी जो है वरिष्ठ या बड़े पासवान जो है और उसी जगह वो कलीसिया जो मात्र कलीसिया है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि वहां पर एसोसिएट और सहायक पासवान लोग हैं। Everyone understood? क्या समझ में आया? But we're always there to help them make decisions, to give them guidance, give them support or a word of wisdom. We're always there for that. और हम हमेशा वहां पर है ताकि इन लोगों को सहायता दे सके, ज्ञान की बातें बताकर दे सके, उनको अगुवाई कर सके। So sometimes if somebody wants to start a life group, और कभी-कभी किसी व्यक्ति को एक छोटा मंडली शुरू करना है, so we help them. हम उनकी सहायता करते हैं, Help them to start. हम उनकी सहायता करते हैं कि वो आरंभ कर सके, हम उसको प्रशिक्षित करते हैं। We tell them to spend time in God's word. हम कहते हैं कि वचन के साथ ज्यादा समय व्यतीत करें। And then we release them. We say, okay, now you are the leader of that group. और हम कहते हैं आप तुम हो उस मंडली के अगुवे। And we don't keep checking, did you do this, did you do that, did you do this? और हम निरंतर ये ध्यान नहीं देते क्या उसने ऐसा किया, इस प्रकार से किया। We trust the leadership. हम उन पे वो अगुवों के ऊपर भरोसा रखते हैं। But we also
must ensure that the leadership must be willing to come and talk to us about any problem or any situation that's और happening. हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वो जो अगुवे हैं वो हमसे आकर उनके बातों को बांटें। So something that we do at APC, we have our pastoral team. एपीसी में ऐसा किया जाता है, एक पासबानों की एक मंडली है, ग्रुप है। We always work together हम एक साथ एकजुट होके काम करते and हैं। we stand with each other. हम एक दूसरे के साथ खड़े We भी रहते support each other. हैं। हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। We may all be doing different ministries. हम अलग अलग सेवकाई कर रहे हैं, We stand together. We support each लेकिन other. हम एक दूसरे के साथ खड़े होते, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। And that's why we are able to do more as a team. और इसी कारणवश एक टीम के समान हम ज्यादा कर पाते हैं। Right? So now in the apostolic stage, it's more about going out. और प्रेरितों का जो चरण है उसमें ज्यादा से ज्यादा होता है कि बाहर निकल के जाना। So it's not like initial stage when you 50 people, you say, okay, I want to go out on missions. We can do that. और 50 लोग हैं तब आपका है कि हमें जाके मिशंस करना है, वो कर सकते हैं। But the point is, you need to strengthen what you already have first. लेकिन मुख्य बात यह है कि जो हमारे हाथ में है उसको मजबूत पहले बनाना है And then go out. और उसके बाद बाहर निकल के जाना है। So these are the different stages. और ये है अलग अलग चरण। And I think if we look at APC, or for example, we are at this equipping and apostolic function. और एपीसी में अगर देखें तो तैयार करना और प्रेरितों को तैयार करने की कार्य करते हैं। But we also focus a lot of attention to our church congregation. और उसी समय पर कलीसिया के सदस्यों के ऊपर हम बहुत ज्यादा भी ध्यान देते हैं। We have teams, we have ministries, leaders, volunteers, over 250 to 300 volunteers in our church. और वहां पर टीम है, सहायता देने वाली टीम है और अपने आप से निजी अपने इच्छा के अनुसार आकर सेवकाई करने वाले टीम है। 250 से ज्यादा वैसे लोग हैं। So as a church goes through these stages, जैसे कलीसिया एक एक चरण से गुजरता है, as a leader, we must be able to recognize and help them to walk through those stages. एक अगुवे के समान वो समझना जरूरी है, वो ध्यान में लाना जरूरी है और उनको सहायक कर बढ़ाने की जरूरत है। In the natural, when you look at a baby, एक प्राकृतिक रीति से एक बच्चे को जब देखते हैं, in about 3 or 4 months, the baby wants to turn upside down. और वो बच्चा जो है 3 या 4 महीने के समय पर वो पलटी करना इच्छा करता है। So what does the parent do? और वो माता पिता क्या करते हैं? Gives a slight push. और एक हल्का सा एक धक्का दे देते हैं। The baby turns. और वो बच्चा जो है पलट जाता है। And then over time, the baby does it on its own. और समय बीतने के साथ वो बच्चा जो है अपने आप कर लेता है। And the baby tries to crawl. और वो बच्चा जो है रेंगने की कोशिश करता But है, there's no strength in the arms still. लेकिन उसके हाथों में कोई बल नहीं है। And sometimes the baby falls and hits his chin to the ground. और कभी कभी वो बच्चा गिर जाता है और अपने दाढ़ में चोट खा लेता है। The mother doesn't carry the baby and run to the hospital for that. और वो माँ जो है उस बच्चे को उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ती नहीं है। Okay, you'll be all right. Come on, you tried one more time. It's okay. और बच्चे से माँ कहती है कि कोई बात नहीं, एक और बार आप कोशिश कीजिए। Then eventually, when the arms become stronger, the baby is able to crawl. और जब हाथ में बल आ जाता है तो वो बच्चा जो है अपने आप में रेंगना शुरू करता है। About 10 or 11 months, the baby wants to stand now. और 10 और 11 महीने के समय पर बच्चे का इच्छा है कि वो खड़े हो जाए। So it'll hold on to something and try to stand. और वो किसी ना किसी चीज के ऊपर पकड़ेंगे और खड़े होने की कोशिश करेंगे। In this stage, the baby gets the most number of hurts. और ये चरण में सबसे ज्यादा चोट उस बच्चे को मिलता है। Keep falling, getting hurt. और गिरता है और चोट खाता है। But the parents don't say, okay, it's okay, don't try. और माता पिता ऐसा नहीं कहते कि कोई बात नहीं, आप कोशिश मत करो। The parents recognize, okay, the baby is learning to walk, so we should help the baby learn to walk. और माता पिता समझ जाते हैं कि ये बच्चा जो है चलने की कोशिश कर रहा है और उसको और प्रोत्साहित और सहायता देते हैं। And eventually the baby will start walking on his own. और समय बीतते वो अपने आप से चलना, बच्चा अपने आप से चलना शुरू कर लेता है। You see the stages there? उधर एक चरण को हम देखते हैं।
Now I can't go to my 9-year-old son and say, "Come, I'll help you walk." और मैं अपने 9 साल के बच्चे के पास जाके नहीं बोल सकता, आओ मैं तुम्हें चलने की सहायता करता हूँ। He'll say, "I already know to walk. और वो कहेगा मेरे को तो पहले से ही मालूम है I'm the चलना, fastest runner in my class." और मैं अपने क्लास में सबसे तेज दौड़ने वाला लड़का हूँ। So you recognize the stage that the church, local church is in. और स्थानीय कलीसिया किस चरण में है उसको हम समझते हैं। So here are a few pointers to help us understand the journeys. और यहाँ of a पे local कुछ church. अंक दिए गए हैं जिसके द्वारा हम वो कलीसिया के यात्रा को समझ सकते हैं। Constantly move people forward. और निरंतर लोगों को आगे बढ़ाते रहें, Keep pushing people. और लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित Keep करते रहें, encouraging people. लोगों को प्रोत्साहित करते रहें, Don't discourage, but encourage. और उनको निरुत्साह ना करें, प्रोत्साहित करें, Keep raising up leaders. और नए नए अगुओं को खड़ा करें, Keep looking forward. और आगे की ओर दृष्टि बनाकर रखें। 2, bridging between two levels. और 2 चरणों के बीच में जो है पुल बनाना। Right? So we can't be giving the milk every time. हम हमेशा जो है दूध के समान नहीं दे सकते, And we cannot step into, from one, if you look at a staircase, you can't step from 1 to go to the 5th step immediately. और हम ये भी नहीं देख सकते कि पहले पायदान से अचानक से 5वें पायदान पर चढ़ जाएं। No, you take them through the stage. हम जो है एक एक चरण से उनको लेकर चलते हैं। So first you teach, okay, identity, और पहला जो है हम उनको पहचान सिखाते हैं, foundations. नींव, Then slowly you build. और उसके बाद उनको बनाते हैं। You see that, okay, your church is understanding, they're growing. और तब समझ पाते हैं कि कलीसिया समझ रहा है और बढ़ रहा है। Then you take them from one step to another. उसके बाद एक पायदान से दूसरे पायदान की ओर ले जाएं। You're seeing that they are growing with you. और वो आप देखेंगे कि आपके साथ होकर वो लोग बढ़ रहे हैं, The level of maturity increases. और उनकी परिपक्वता जो है बढ़ रही है। Now, what about leading change? और एक बदलाव की ओर अगुवाई करने के विषय में क्या? Now, remember that, I said this before, when you start a ministry, also plan your exit. और याद होगा आपको, पहले मैंने एक बार बोला था कि जब आप अपनी सेवकाई शुरू करते हैं तो निकलने का द्वार भी योजना कर लें। Right? So there should be something called as transition. We should be able to transition from one leader to another without affecting the ministry. और ऐसा होता है कि एक अगुवे से दूसरे अगुवे की ओर एक बदलावट की ओर हमें योजना करना जरूरी है। Right? Let me give you an example from the Old Testament. मैं Beautiful. पुराने नियम से एक उदाहरण देना चाहूंगा। Remember Elijah? एलीजा के एली के बारे में याद है? He's a prophet. वो एक भविष्यवाणी, Everyone is saying, oh, Elijah is the greatest prophet. और हम सब कहते हैं कि भविष्यवक्ता एली जो बहुत महान भविष्यवक्ता है। Now Elisha is there. एलीशा है वहां पर। Everyone know that maybe this guy is going to be the next person. और सब लोग जानते हैं कि हो सकता है ये व्यक्ति अगला भविष्यवक्ता होगा। So Elijah said, okay, if you see me taken up to heaven, then my anointing will come upon you. और वो एलीशा से बोलता है, अगर तुम मुझे स्वर्ग में उठाए जाना देखते हो तो तुम पर मेरा अभिषेक आएगा। A double anointing will come upon you. एक दुगना भाग अभिषेक। And it happened. और वो हुआ। From Elijah was taken up into heaven. एली को पर स्वर्ग में उठाया गया। Elisha was there. एलीशा वहां पर था। Elisha took Elijah's cloth. और वो कपड़ा जो है एली का जो था वो एलीशा ने उठाया। He hit the waters. उसने पानी के ऊपर मारा। The waters parted. और वो पानी 2 भाग में And बदल everyone गया। said the spirit of Elijah is now on Elisha. और सब लोगों ने कहा कि एली का आत्मा जो है एलीशा के अंदर है। But Elijah prepared Elisha for that. लेकिन एली ने एलीशा को तैयार किया उसके लिए। Another beautiful example is Paul and Timothy. और एक अच्छा उदाहरण है पौलुस और तिमोथी। Paul is a leader. पौलुस एक अगुवाई करने वाला है। But when he saw Timothy, he probably saw, okay, one day he will become a
और pastor. जब पौलुस ने तिमोथी को देखा तो उसके मन में आ गया था एक दिन ये व्यक्ति जो है पासबान बनेगा, So he trained him और उसने पौलुस ने तिमोथी को तैयार किया and he appointed him. और उसके बाद नियुक्त किया। So transition from one person to another is very important. और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जो बदलाव है वो बहुत जरूरी है। Right? Now remember, transition will happen. बदलाव जरूर होगा। Right? Sometimes people will stay with you in the ministry from the beginning till the end. और कभी कभी लोग जो है आपके साथ सेवकाई की शुरुआत से लेकर अंतिम चरण तक रहेंगे, But sometimes people will move on. लेकिन कभी कभी जो है लोग जो है आगे बढ़ेंगे। Right? They'll want to go to another church or another ministry, whatever the reason may be. और कोई भी कारण होने दो, उनका इच्छा होगा कि एक कलीसिया से वो दूसरे कलीसिया जाए या एक सेवकाई से दूसरे सेवकाई की ओर बढ़े। But the ministry should not be affected. लेकिन सेवकाई जो है वो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। So we should have a good transition plan. और उसके लिए एक उचित बदलाव का योजना होना So in है। APC, what we do is we have about a 3 or a 6 month transition that we go through. और एपीसी में ऐसा है 3 से 6 महीना का एक बदलावन का समय होता है। So for example, I look after life groups. मैं Life groups. लाइफ cell ग्रुप groups. जीवन लाइफ ग्रुप को Cell मैं groups. नेतृत्व करता हूँ, कोशिका मंडली को नेतृत्व करता हूँ। So we have about 43 life groups all across Bangalore. और बेंगलुरु के अंदर 43 कोशिका मंडलियां हैं About 350 attending life groups. और 350 लोग जो है उस मंडली में आते हैं। Now, for example, उदाहरण से, right, I say, so I want to transition, I want to focus only on the church. So I am going to give, transition the ministry to brother. और ऐसा ले लें कि मैं सिर्फ जो है कलीसिया पर अपना ध्यान देना चाहता हूं और मैं अपना जिम्मेदारी जो कोशिका मंडली का है वो भाई के ऊपर देना चाहता हूं। So maybe 3 to 6 months before I'll meet with brother और 3 से 6 महीना पहले मैं भाई से मिलूंगा and I'll start sharing what is the life group, और मैं उनके साथ बांटना शुरू करूंगा कि ये मंडली के बारे में what is the vision, और इसका दर्शन क्या है, why we have life groups, क्यों ये लाइफ ग्रुप है what we want to see, और in हम the life आगे groups. क्या देखना चाहते हैं what happens inside a life group. और उस लाइफ ग्रुप के अंदर क्या क्या होता है। Then I'll tell brother, you come with me, I'll take you to one life group. और मैं कहूंगा भाई आओ, एक आपको एक वैसी मंडली में मैं लेके जाता So हूँ। he comes with me, we see what's happening in the life group. और हम उधर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या होता है। Then I share with him how to start a life group, और उसके बाद मैं उनसे बोलता हूं कि किस प्रकार से लाइफ ग्रुप को आरंभ how किया to जाए recognize the leaders for the life group, और किस प्रकार से अगुओं को मैं पहचान सकूं how do I train the life group leaders, और उनको मैं कैसे तैयार कर सकूं। what are the practical points that are involved when we start a life group. और लाइफ ग्रुप स्टार्ट करने के समय पे प्राकृतिक रीति से क्या बातें हैं, Right? So many things are there. और कई बातें हैं वहां पर। So in 3 to 4 months or at least 6 months, I have transitioned the whole role to brother. और 3 से 6 महीने के अंदर जो है उस भाई के अंदर वो जो मिशन है वो उसके बारे में एक बदलाव उनके अंदर। Now he is the life group coordinator or life group pastor. और अब ये भाई जो है वो लाइफ ग्रुप का कोऑर्डिनेटर है, अगुवा करने वाला Now है। after 6 months, 6 महीने के बाद he is not calling me and asking, what should I do now? और 6 महीने के बाद वो मेरे को फोन करके नहीं पूछते हैं कि क्या मैं करूं। He knows. वो जानते हैं He knows everything that has to be done. और उनको सब कुछ जानकारी है कि वो क्या करें। But I'm always there for any help. और लेकिन मैं किसी भी तरीके के सहायता के लिए हमेशा हूं। Now, very important. When What- I've transitioned, I've given him the role. जब मैंने उनको ये कार्य दिया I am not interfering in what he is doing. और मैं वो क्या कर रहे हैं उसमें दाखिल नहीं हो Now, रहा he is the leader. वो है अगुवाई करने He is वाला going to take the ministry forward. और वो सेवकाई को आगे ले जाएगा। Now, people may like him more than me. और हो सकता है कि लोग उस भाई को मेरे से ज्यादा चाहे, That's okay. वो ठीक है। Because remember John the Baptist? याद है आपको यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला, So it's not about
who's the leader. It's about the ministry. और वो व्यक्ति के ऊपर नहीं है ध्यान, सेवकाई के ऊपर ध्यान है. And then we officially inform all the life group leaders. See, we have a new life group coordinator. He will look after the life group ministry. और उसके बाद जो है घोषणा किया जाता है कि लाइफ ग्रुप का एक नया अगुआ आया है, वो होगा अब से ध्यान देने वाला. Right? So those who are leading a church or leading a ministry, ensure that this transition is done in a right way. और जो कोई सेवकाई में है, जो कोई पासबान की सेवकाई में है, वो जरूर ध्यान दें कि ये जो बदलने का चरण है उसको सही रीति से करें. Very important point. Bring the right people at the right place and at the right time. और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सही समय पर, सही जगह पर, सही व्यक्ति को लेकर आए. Now God will, as leaders, God will give you the wisdom to choose the right people. और अगुवाई करने वाले व्यक्ति चलते परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि देगा कि सही व्यक्ति को चुनाव करें. God will orchestrate. Okay, let him be here. Let her be here, and He will orchestrate everything. और परमेश्वर जो है सही रीति से सब कुछ अपने अपने रीति से, ये व्यक्ति यहाँ पर, वो व्यक्ति वहां पर कर योजना करेगा. Again, not everything will work according to our wish and our plan. और सब कुछ हमारे इच्छा के अनुसार या हमारे सोच के अनुसार नहीं होगा. People may say, no, I don't want to serve here. I'm going to another country or I'm going to another city. और कल लोग बोलेंगे कि मेरा इच्छा नहीं है कि यहाँ सेवकाई करे, मैं और किसी देश में जा रहा हूँ. Don't be discouraged. आप मन छोटा ना कर लें. There is no position that God cannot fill. और ऐसा कोई भी जगह नहीं है या स्थान नहीं है जहाँ जो परमेश्वर उसको पूरा भर नहीं सकता. Right? And also there will be challenges as you go up to higher levels. और ऊंचे चरण में जाने के समय पर चुनौतियां ज्यादा होंगे. Listen to this. The higher up you go, सुनिए इसको ध्यान से, जितना ज्यादा आप ऊंचा उठेंगे, the more the responsibility, उतना ज्यादा जिम्मेदारी, the more the challenges, उतना ज्यादा चुनौती, the more you need to spend time in God's presence. और उतना ज्यादा जो है आपको परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना है. You understood this? आपको समझ में आया? Right? It's not, I used to think it's the other way. मैं हमेशा सोचता था वो अलग रीति से है. If I become a leader, I'll tell everyone what to do. और मैं अगर एक अगुआ बन जाऊंगा, मैं सबको बोलूंगा कि क्या करना है. No. The higher you go, जितना ऊंचा आप उठोगे, the greater the responsibilities, उतना ज्यादा जिम्मेदारी, the more you have to spend time in God's presence. और उतना ज्यादा आपको परमेश्वर के साथ The समय more व्यतीत you करें, need wisdom from God. और उतना ज्यादा बुद्धि चाहिए परमेश्वर के पास से. When I go to church and there's so many challenges that people go through and I need the wisdom from God. और मैं जब कलीसिया जाता हूँ, लोग बहुत सारे चुनौतियों को देखते हैं, तो मुझे परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है. And God helps us. We keep pressing on. God helps us to minister to them in the right way. और परमेश्वर बुद्धि और सहायता देता है कि सही रीति से उनको हम लोग अगुवाई दे सके. See, those of you who are becoming leaders, वो लोग, आप लोग में से जो अगुवाई करने वाले बनना चाहते if हैं, you want to become a pastor or an evangelist, whatever God has called you for, सेवक या पासबान आप बनना चाहते हो, start spending time in God's presence. आप परमेश्वर के समूह में परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करें. If you want to become a cell group pastor, अगर आप कोशिका मंडली के पासबान बनना चाहते हो, spend 2 hours in God's presence. 2 घंटा परमेश्वर के सामने. I'm just giving you a number, right? एक अंक सिर्फ मैं दे रहा हूँ. You want to become an associate pastor? एक सहायक पासबान बनना चाहते हो, 4 hours. 4 घंटा. And if you want your church to grow to 500 people, अगर आप अपनी मंडली को 500 के अंक में बढ़ना देखना चाहते हो, at least 5 hours a day. कम से कम 5 घंटा परमेश्वर के साथ व्यतीत करो. How is this possible? ऐसे कैसे हो सकता है? Only 24 hours in a day. 24 ही घंटे हैं एक दिन में. It's possible. ये संभव है. Right?
If there is no sacrifice, अगर कोई त्याग नहीं है we will not see results. और हम फल नहीं देख पाएंगे। Right? But God is gracious. He still opens doors for us. परमेश्वर दयावान है, इसलिए वो द्वार खोल कर देता है। Okay. So let's go into chapter 5. 5वें पाठ की ओर जाएंगे। Now, this is a very important chapter. ये बहुत ही महत्वपूर्ण What पाठ है। makes a local church strong? एक स्थानीय कलीसिया को क्या है जो वो मजबूत बनाता है। Now we're going to look at practical aspects हम जो है जो उपयोगदायक बातों को हम देखेंगे। right? So we saw that spiritually God is with us, we become one with him, all of that is there. आत्मिक रीति से हमने देखा है कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ कार्य करेगा। But what is the characteristics of a strong local church? एक स्थानीय कलीसिया, जो मजबूत स्थानीय कलीसिया का चरित्र क्या है। Right? We all are part of a local church. हम सब जो है एक स्थानीय कलीसिया के भाग हैं। And so let's look at some of the characteristics of a strong local church. और हम देखेंगे कि एक मजबूत स्थानीय कलीसिया के चरित्र क्या है। A strong local church will have strong leadership with a God-given vision. और एक मजबूत स्थानीय कलीसिया में एक अगुवाई होगा, एक जो परमेश्वर के द्वारा दिए हुए दर्शन के अनुसार। Without a vision, we will become unproductive. और एक दर्शन नहीं है तो हमारे अंदर एक फलदायी अनुभव नहीं You know होगा। what will happen? मालूम है आपको क्या होगा? We'll become like the Israelites. और इजरायलियों के समान हो जाएगा। They'll be going in circles. वो जो है गोल गोल घूमते रहेंगे, Because there's no moving forward, there's no vision. क्योंकि दर्शन नहीं है, इसके कारण वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। It's just aimless. Okay, Sunday church, Wednesday cell group, aimless. No vision. कोई लक्ष्य के बिना या दर्शन के बिना होगा। ठीक है, रविवार की कलीसिया, बुधवार की कोशिका कलीसिया। Let's read Matthew 15:14. मत्ती 15 का 14 हम पढ़ेंगे। मत्ती Here's why I love, some of the ways Jesus spoke. और The others, the Pharisees and the rulers could not come back to the way he spoke. और कभी कभी मुझे इतना अच्छा लगता है कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से बातचीत किया, जो फरीसी लोग जो है उसको सामना नहीं कर पाते थे। Read Matthew 15:14. 15 का मत्ती रचित सुसमाचार 15 का 14 पढ़ें। माइक किसके पास है? माइक किसके पास है? सागर? Nobody has the mic? उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। If the blind leads the blind, both will fall into a ditch. और अंधा यदि एक अंधे को मार्गदर्शन करें या रास्ता दिखाएं, दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। Yes or no? हाँ या ना? Think of it practically. Imagine two blind men. One blind man is leading another blind man. वास्तविकता से सोचें, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। What's going to happen? क्या होने वाला है? Both are going to fall. Both don't have the vision to see. और दोनों के पास मतलब आंखें नहीं है ताकि वो देख सके। A good leader एक अच्छा अगुवा has a good vision एक अच्छा दर्शन है उसके and पास, is able to communicate the vision clearly. और उसका दर्शन को सही रीति से दूसरों से बोल सकता है। Now, look at the example of the people of Israel. इजराइल लोगों के बारे में उदाहरण देखें। Moses brought the people of Israel out of Egypt and they've come almost close to the promised land. और मूसा जो है अगुवाई करके इजराइलियों को जो वादा किया देश के पास तक लेके आ जाता है। Now, Moses has given the leadership to Joshua. योशुआ को उसने अगुवाई का उत्तरदायित्व दिया है। Picture this, everyone are looking at Joshua. What to do now? और सब लोग जो है, आप एक चित्र देखें, सब लोग जो है योशुआ की ओर देख रहे हैं। Joshua didn't say, okay, everyone, now I'm the leader. योशुआ ने नहीं कहा कि देखो मैं अगुवाई करने वाला व्यक्ति हूं, Don't fight among yourself. आप अपने में लड़ाई ना करें, Don't
whatever food is given, eat it quietly. और जो कुछ खाना दिया जाता है शांत खा ले। Does he say all that? क्या वो ऐसे सब बातें बोलता है? Joshua 1, he begins and he says, okay, be strong and courageous. और पहला जोशुआ में लिखा हुआ है कि वो कहता है कि बलशाली बन जाएं For we are और going to go into the promised land. और धीरज रखें क्योंकि हम वादा किया हुआ देश में प्रवेश करने This वाले is the हैं। land flowing with milk and honey. और ये जगह है जहां पर दूध और शहद बहता है। This is the land which God has promised Abraham. और ये जगह वो है जिसको अब्राहम को परमेश्वर ने वादा दिया था। And this is a covenant that God made with us. और ये वाचा था जो परमेश्वर ने हमारे साथ So बनाया we था। are going to enter the land. और हम ये देश में प्रवेश करने वाले हैं। What is Joshua doing? योशुआ क्या कर रहा He's है? sharing the vision with the people. और वो दर्शन को लोगों के साथ बांट रहा है। Did they know that they're going to the promised land? क्या उनको मालूम था कि वो जो वादा किया वो देश में प्रवेश करने वाले हैं? Yes or no? आया ना? Yes. They हाँ। knew they are going to the promised land. उनको मालूम था कि वो वादे किए हुए देश में जाने वाले But हैं। Joshua is reiterating and making the vision clear to them. और लेकिन योशुआ ये कर रहा है कि एक और बार उनको याद दिलवा रहा है और उसको मजबूत कर रहा है। Leadership is important. अगुवाई जो बहुत जरूरी है। If a shepherd fails, the whole sheep goes scattered. अगर जो चरवाहा है वो अगर गिर जाए, वो हार जाए, तो पूरा जो भेड़ है, समूह है, खत्म हो So जाएगा। leaders must be courageous. जो अगुवाई करने वाले धैर्यशाली They होने must चाहिए, have perseverance उनके पास धीरज होना चाहिए and they must be disciplined. और अनुशासित होना चाहिए। Discipline is very important, अनुशासन बहुत जरूरी है। right? 2, दूसरा, a church, a strong local church is where there is a balanced emphasis on the word and the spirit. और एक बलवंत कलीसिया, स्थानीय कलीसिया वो है जहां पर एक संतुलन बना रहता है और वो लोग वचन और आत्मा पर जोर देते हैं Like balance both of them, और दोनों को संतुलित रीति से रखते हैं। right? It's not only the word, वो सिर्फ वचन नहीं, it's not only the supernatural miracles and all of that. और सिर्फ अलौकिक चिन्ह और चमत्कार नहीं, But it's a good balance between both, लेकिन दोनों के बीच में एक संतुलन। right? So for example, if you're making a dish, उदाहरण से आप एक पकवान बना रहे you're हैं, making a cake, आप केक बना रहे हैं, you need baking soda, the cake powder, और आपको जो केक बनाने के लिए जो बेकिंग सोडा लगता है उसकी जरूरत है, you need a little bit of salt, कुछ थोड़ी मात्रा में नमक की you need a जरूरत little है, bit of sugar. थोड़ी मात्रा में शक्कर की जरूरत है। Now, just because I have more sugar, I can't put the full sugar and say, okay, cake will get ready. और मेरे पास ज्यादा शक्कर है, इसके चीनी है, इसके कारण ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास ज्यादा इसलिए पूरा डाल दूंगा और केक तैयार हो जाए। Or I can't say, okay, I have a new packet of, cake powder, so I'll put the whole thing inside. और अब ये भी नहीं बोल सकता कि मेरे पास एक नया केक पाउडर का एक पैकेट है तो मैं उसके पूरा उठा के उसमें डाल दूं। No, to make the cake, you have to balance everything out. और एक केक को तैयार करने के लिए सारी चीजों को सही रीति से संतुलन में लाने की जरूरत है। And Jesus did this in his ministry. और यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में ये कार्य किया। He taught, He- he preached, he taught, और उसने सिखाया, प्रचार किया, and then he followed that up with signs, wonders, and miracles. और उसके बाद चिन्ह और चमत्कारों के साथ उसने उसको पीछे हुए। Sometimes he did a miracle, कभी कभी एक चिन्ह करते थे and then he said, your faith has healed you. He और- ministered to them. और वो उसके बाद उनसे कहते थे कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। So we must always ensure a balance of both. और हमें हमेशा ये सूचित करना है कि एक संतुलन होना चाहिए। So we see here 5 areas where we need to strengthen the local church. और जो स्थानीय कलीसिया है उसको मजबूत करने के लिए 5 अंक को हम देखते हैं। Evangelism, सेवकाई, discipleship, शिष्यत्व, prayer and worship, प्रार्थना और आराधना, fellowship, मंडली equipping for ministry. और तैयार करना सेवकाई के And there लिए। may be many more areas where we need to build the church. और कई और क्षेत्र है जहां पर हमें एक कलीसिया को मजबूत बनाना है।
But in all areas of the ministry, और सारे सेवकाई के क्षेत्र में balance the word and the work of the Spirit. और वचन और आत्मा को के सेवकाई को संतुलन में रखे। Everyone with me? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? Yes? Okay. So, how do we prepare people for pulpit ministry? और आगे की सेवकाई के लिए किस प्रकार से हम लोगों को तैयार कर सकते हैं? Now, remember, pulpit ministry is one of the most important ministries in a local church. और एक स्थानीय कलीसिया में मंच की सेवकाई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सेवकाई है, Because that's where you'll be standing and ministering the word of God for at least 45 minutes to an hour. और वो स्थान है, मंच वो स्थान है जहां पे कम से कम 45 मिनट जो है आप खड़े होके प्रचार करेंगे। So the preaching time is not just to fill up time in the church. और प्रचार करने का समय जो है कलीसिया के समय को भरना नहीं है, It is done with a purpose. और वो एक उद्देश्य के साथ किया जाता है। Every time I get the mic हमेशा जब मेरे को माइक हाथ में आता है and it comes to preaching of the word of God, और जब प्रचार की बात आती है, there's still a fear that comes into my heart. और अभी भी एक डर मेरे अंदर आता है। Not a fear of failure, हार जाने का डर नहीं, but the fear of the Lord. लेकिन परमेश्वर का भय। My prayer is always, Lord, we will share the word, मेरा प्रार्थना हमेशा रहता है, प्रभु हम तो वचन को बांटेंगे, but Holy Spirit, you minister to the people. लेकिन पवित्र आत्मा आप लोगों के बीच में सेवकाई करें। Right? So we must honor the pulpit time. और मंच का समय जो है उसका सम्मान करें। Don't have 10 minutes of word और 10 मिनट का वचन ही न करें on a Sunday morning, रविवार के सुबह, because the local church becomes strong by the emphasizing of God's word. और वचन के ऊपर जोर देने के कारण ही जो स्थानीय कलीसिया है वो मजबूत हो पाएगा। So how can we balance the teaching and preaching of God's word? और किस प्रकार से परमेश्वर का वचन के अंदर से शिक्षा और प्रचार को हम संतुलन में ला सकते So हैं। you can talk about Christian life, about the walk of faith, about prayer, about worship. और जो हमें मसीही जीवन, प्रार्थना जीवन, प्रार्थना, आराधना, इसके बारे में हम बातचीत कर Then सकते you can हैं। talk about life skills. और हम जो है जीवन के शैलियों या Life skills meaning how कौशल, to, जीवन के कौशल को हम के बारे में बोल सकते हैं। and then you talk about ministry as well, how to minister to one another through the anointing of the Holy Spirit. और हम उसमें ये भी बात कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा किस प्रकार से हम सेवकाई कर सकते हैं। Now I want to ask you, how many of you prepare your own sermons? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कितने लोग आप में होकर अपने में अपना प्रचार तैयार करते हैं, अपने आप से प्रचार तैयार करते हैं। Yes, very good. What about the others? और दूसरों के विषय में? Okay, here's what I want you to do. Everyone, ये मैं चाहता हूं आप करें, हर एक व्यक्ति। even maybe you can start today, you can plan maybe after you go back home. और आप आज वो उसको योजना बना सकते हो या आप वापस जाकर भी योजना बना सकते हो। Every week, हर एक हफ्ते prepare one sermon. एक प्रचार तैयार कर ले। And you prepare maybe, you choose a topic. Okay, you can choose Bible characters. और आप एक शीर्षक को चुन सकते हैं, बाइबल के शीर्षक को चुन सकते हैं या एक बाइबल के व्यक्ति को चुन सकते हैं। Now, some of you may say, hey, I'm always at home. I'm going to work. और आप कुछ लोग कह सकते हैं कि घर I'm always not at home. I'm always at home, or I'm always at work. और आप लोग में से कुछ बोल सकते हैं मैं हमेशा घर में हूँ या काम के लिए जाता हूँ, जाती हूँ। Who will give me opportunity to? What's the use of preparing sermon? मेरे को कौन मौका देगा प्रचार तैयार करने का? क्या अच्छा है? You do the work. आप काम करें, You prepare. आप तैयार करें, God will open the door. परमेश्वर द्वार खोलेगा। Amen. Amen. Right. So you prepare once a week, one sermon, preach it to yourself.
और हफ्ते में एक प्रचार आप तैयार करें और अपने आप के ऊपर वो प्रचार कर दें। So suddenly pastor will say, okay, why don't you share in the cell group? और अचानक से पासबान कहेगा कि ये जो कोशिका मंडली है, क्यों ना आप बांटो परमेश्वर के वचन से। Then you don't have to go, okay, what to talk about? I don't know what to speak. Oh Lord, please help me. और उस समय हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हे प्रभु मुझे नहीं मालूम क्या प्रचार करना है, मेरी सहायता करो। You know what? You've already prepared yourself. आपने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। All right? ठीक है, Shall we do that? क्या वो कर सकते हैं? Okay. All right. Take a break. Let me come ब्रेक back. ले लें और वापस आएंगे।